So let me just give a brief. Today's session we will have on the statistics. Session would be brief, nearly 20 to 30 minutes. आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स को लेकर completely कुछ भी मेंशन नहीं है, only they have written few keywords. And one more thing, people who are preparing for the PG entrance examination, they are supposed to also follow UGC NET paper 2. I would like to recall, I think Vijayant is solving CUET examination के लिए वो UGC नेट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 2, एंड दैट इज क्वाइट हेल्पफुल बिकॉज योर 60 to 70% सिलेबस इज सेम फॉर CUET entrance as well as UGC NET. So if in between, if anyone has any doubt, do ask. Niharika, Ravi, yeah. So you guys are added, I think, yeah. So before starting the session, in session we will be discussing books, test series, PYQ, how to approach, what about the, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन और इंट्रेंस यह बिल्कुल अलग है. आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे, उनके डिफरेंट जो भी एक्स वेरिएबल्स वाई वेरिएबल्स होते हैं उनके बेसिस पे आपको डिटेल्ड में अगर हो सके तो निकालने पूछेंगे. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए या फिर मीन निकालिए, मोड निकालिए. बट इन द इंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में वो इतना डिटेल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे. दे विल चेक योर एनालिटिकल स्किल. जैसे मीन, मीडियन, मोड के जो कुछ फेमस फार्मूला है दैट यू माइट बी नोइंग, दैट आई विल बी प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, डोंट वरी, in just 2 minutes. In between, if anyone of you have anything to say, so please ask me. You can connect me here audio, or you can just turn on your video and I will take you here in the live session. And people who will miss the session, no need to worry, so the lecture will be uploaded after the live session is done. Okay, yeah, anything, anyone, one has to say anything? We have lots of people here. Ananya is there, Anushka, Arifa, Deepak, Kalyani, Megha, Mausam, yeah, lots of people. I think we are ready to go. Yeah, so अब आप लोग यह बताइए, लेट मी आस्क यू फ्यू थिंग्स. सो अकॉर्डिंग टू यू, मैथमेटिक्स ज़्यादा टफ लग रहा है या फिर स्टैटिस्टिक्स? यूजुअली क्या होता है, मैथमेटिक्स हम क्लास 12 तक पढ़ते हैं, हालांकि स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ते हैं, बट मैनी पीपल डोंट हैव ऑप्शन टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स. जैसे बहुत से लोग बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, बहुत से लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपने जरूर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा. जस्ट आई वुड लाइक टू आस्क पीपल, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने जो भी बेसिक्स, माइक्रो, मैक्रो हैं, ये सब क्लास लेक्चर्स ऐप पे ऑलरेडी देख चुके होंगे. एंड आई विल बी ऑल्सो टेकिंग द ब्रीफ सेशन ऑन मैथमेटिक्स इन लास्ट 5 minutes. Already I have made I think quite 2 to 3 videos on the YouTube as well. क्लास में मैंने एक लेक्चर्स लिया था कि बेसिक मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या करने हैं, कहाँ से सोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं जिनके बेसिक्स मैथ्स कमजोर हैं. टुडे आई विल बी टेकिंग मेनली स्टैटिस्टिक्स. सो सेशन वुड बी नियरली 15 to 20 minutes. So allow me to present the screen, and afterwards you can ask any doubt if you have. Otherwise you can just ask your doubt here only. I will take all the chat and will reply in the presentation session. So yeah, please go ahead. Next 1 minute, your chat section is open. You can ask there, or you can ask anything in the audio format. No issue. Please go ahead. या तो आप ऑडियो में पूछ लेंगे, या तो वीडियो you can turn on directly. You can just chat with me on the video. Otherwise you can put your thought in the chat box. I will be taking all the queries together. Yeah, so we have Subha Lakshmi here. Hello. Yeah, so 1 minute I will be waiting. Please ask anything if you have, or shall I present the session? Yeah, hello Ankit. So tell me honestly, how's your preparation going on? Honestly you should be telling. कैसा प्रिपरेशन आपका चल रहा है, बी इट चाहे कॉन्फिडेंस लेवल हो, या जस्ट समिंग अप योर सिलेबस हो, या फिर एक होता है ना कि नो दिस इज माई द टारगेटेड कॉलेज. आई हैड एन आई थिंक पॉडकास्ट, डन ए पॉडकास्ट विथ अ DSE स्टूडेंट. सी हैज़ अप्लाइड फॉर DSE एंड JNU, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सी डॉट ओनली CUET एग्जाम. दिस डेज वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन. IFT भी लिखते हैं, कुछ CUT भी लिखते हैं, कुछ बच्चे फिर ISI लिखते हैं, कुछ IIT JAM लिखते हैं. बट इफ़ यू आर वेरी मच श्योर कि मुझे DSE ही जाना है, मुझे IGRDR ही जाना है, या यू आर वेरी मच श्योर कि नहीं मुझे DSE IGDR जाना है, या नहीं हुआ तो फिर गोखले जाना है, HCU जाना है, देन यू शुड फिगर इट आउट, क्योंकि सिलेबस फिर काफ़ी ईजी हो जाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा. ओके, तो चलिए, आई थिंक यू गैज हैव नो एनी क्वेरी. आफ्टर माई आई थिंक प्रेजेंटेशन यू विल बी एबल टू आस्क. सो अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन. ठीक है,
और मेरी आवाज़ अगर बिल्कुल आ रही है तो एक बार चैट में लिख देंगे यस सर यू आर क्वाइट ऑडिबल, ठीक है। जस्ट ए मिनट, आई थिंक सो स्क्रीन आप मेरी देख पा रहे हैं? माई स्क्रीन इज क्वाइट विजिबल फॉर एवरीवन, राइट? या okay, as well as I am audible. Sir, this is the first lecture on statistics. Sir, I started my present very recently, so I am able to completely the whole syllabus. हाँ, okay, yes Kalyani, don't worry. Yes Samir, this is our first lecture and here you can see that how we have to go. So if you see your CUT PG statistics, ये हमारा statistics है, stats मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, and हमने साथ में statistics and econometrics for UGC NET भी ले लिया, ठीक है? For UGC NET, so first we will see UGC NET में आपको statistics में क्या पढ़ना है और उसके बाद हम CUET में भी देखेंगे। CUET में एक या दो क्वेश्चंस एवरी ईयर इकोनोमेट्रिक्स से आते हैं, इकोनोमेट्रिक्स से आते हैं। तो आपको इकोनोमेट्रिक्स के भी बेसिक लेक्चर्स हों वो करवाए जाएंगे फॉर द CUET एस्पिरेंट, क्योंकि CUET से में हम रिस्क नहीं लेंगे। इवन आई सॉ लास्ट ईयर CLRM पे एक क्वेश्चन था, CLRM क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, और वह देखिए कहाँ से उठाया गया है, वह आपको लिया गया है यहाँ से, लीनियर रिग्रेशन मॉडल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ब्लू एंड ऑल। तो आराम से आप A4 साइज पेपर लोगे, A4 साइज एक पेज, उसको आप या तो अपने कॉपी में रखोगे, नोटबुक में कहीं चिपका दोगे या वॉल में चिपका दोगे, और जितने भी कीवर्ड्स लिखे हैं, अगर आप CUT एस्पिरेंट हो तो इसको आप लिखोगे सबसे पहले, एंड उसके बाद अगर आप UGC NET एस्पिरेंट हो, आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि UGC NET पेपर 2 और CUET PG इन दोनों का साथ प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है? एंड आफ्टर द सेशन यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग, या प्लीज somebody has to say something, go ahead. Shruti, you were saying something? Yeah, in between if anyone has any doubt, put your message in the chat box or you can just turn on your audio and in between you can ask. तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो हम स्टार्ट प्रोबेबिलिटी से नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द मीन मीडियन मोड, जिसको कि आप लोग, ये रहा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, ठीक है? एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यह आपका सबसे पहला टॉपिक होगा। हालांकि इससे पहले आपको बेसिक्स जो होंगे पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा क्या होते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, यह सब थ्योरी कभी कभी आपको इंपॉर्टेंट है। एक लेक्चर में कोशिश करूंगा इस पे भी लेने का, डेटा कलेक्शन एंड ऑल, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हालांकि हमारा स्टार्टिंग रहेगा यहाँ से। तो स्टैटिस्टिक्स और UGC NET वाले पहले ध्यान देंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए। हाँ, CUT PG के लिए इकोनोमेट्रिक्स नहीं पढ़ना है, एक आध टॉपिक आप देख सकते हैं, बेसिक CLRM देख सकते हैं थोड़ा बहुत, दैट आई विल बी कवरिंग इन द लेक्चर, डोंट वरी। ऑटो कोरिलेशन, मल्टी कोलिनियरिटी, यह सब आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, एक आध क्वेश्चन इससे आते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। बाकी जो है नेट JRF वाले, इनमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है। फिर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें मेनली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जस्ट वी टॉक्ड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ही हो गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मेनली आएगा मीन, ऑल काइंड्स ऑफ मीन, ठीक है? AP जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, या HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक मीन, मीन हो गया, फिर मीडियन हो गया, मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है? ये सब के सब हम पढ़ेंगे, इसके सारे प्रॉपर्टीज विथ ऑल न्यूमेरिकल्स, तो ये हम करने जा रहे हैं। फिर है आपके डिस्पर्सन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर। अब देखिए आपको इंडेक्स नंबर CUT PG में नहीं लिखा हुआ, राइट? बट यू आर सपोज टू डू इंडेक्स नंबर, और मैं क्लास में इंडेक्स नंबर भी करवाऊंगा, सो यू नीड नॉट टू वरी, हो सकता है एक आध क्वेश्चंस वहां भी आ जाए। तो इंडेक्स नंबर है, सैम्पलिंग मेथड्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग देखेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेज होंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होंगे, और जितने भी अपार्ट फ्रॉम हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स, जितने भी आपके हैं टेस्ट्स, ठीक है? अगर हो सके तो आप चैट में एक बार लिख दीजिए जो भी हैं टेस्ट आपके, T टेस्ट हैं, या फिर Z टेस्ट हैं, या फिर F टेस्ट हैं। मैच द फॉलोइंग आप देखोगे तो Z टेस्ट 2024 में आपके PYQ में आया हुआ है, राइट? बट यहाँ पर किसी प्रकार का टेस्ट का मेंशन नहीं है। थैंकफुली वी हैव कवर्ड लास्ट टाइम ऑल्सो एंड दिस टाइम ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर। तो स्टैटिस्टिक्स में सिलेबस के अनुसार आपको सिर्फ ये लिखा हुआ, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, क्वार्टाइल डेविएशन,
ये आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूं। दिस पोर्शन इज नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फर्स्ट वाला। यस समीर चावला, स्टैंडर्ड एरर, यस एवरीथिंग विल बी कवर्ड। फिर आपका कोरिलेशन, फिर है सिंपल रिग्रेशन मॉडल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग। यह अलग अलग है, यह सिलेबस में थोड़ी, ये देखिए ठीक है, सिंपल रिग्रेशन मॉडल यहाँ तक, फिर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर है सैम्पलिंग, यह अलग अलग है। 1 2 और एक हो गया ये 3 और ये हो गया कोरिलेशन आपका। अच्छा, सब अलग अलग कलर हैं। ब्रॉडरली 1 2 3 4 एंड 5 और एक इकोनोमेट्रिक्स आप लगा लो तो 6। सिर्फ यही 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एक बार जल्दी से हम रिकैप करेंगे। यही 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं फॉर सीयूटी पीजी एंट्रेंस। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक है, फिर आपके कोरिलेशन है, कोरिलेशन के बाद रिग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड सैम्पलिंग है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनोमेट्रिक्स के बेसिक हैं, CLRM के जो भी 8-10 एजम्पशंस हैं, इसके डिटेल के हम सारे एजम्पशंस देख लेंगे। आई थिंक 2 से 3 क्लास इकोनोमेट्रिक्स का होगा, दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर द पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूटी वाले। इतना आपको स्टैटिस्टिक्स में करना है। ऑन द टॉप ऑफ दैट जो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं या जो फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हैं, जो यूजीसी नेट में आपको पढ़ना होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस आपके कुछ एक टॉपिक इंडेक्स नंबर है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, और ये तो चलिए इकोनोमेट्रिक्स का टॉपिक हो गया। जो साइमल्टेनियस इक्वेशन वगैरह है, ब्लू है, टाइम सीरीज एनालिसिस है, यह तो यूजीसी नेट वालों को करवाया जाएगा इकोनोमेट्रिक्स में। However, if some of you are interested कि नहीं सर अब हमें भी इकोनोमेट्रिक्स कवर करना है, so if you people will think and if you people comment will, तो आपका भी लाइव लेक्चर या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी आप कोर्स ज्वाइन किए हैं अकॉर्डिंगली, सीयूटी वालों को, पीजी एंट्रेंस वालों को भी यह सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। However, it's all up to you how you choose your topic. Minimum you have to do this 6 topic. Minimum 6 topics आपको करने हैं minimum. And we are not preparing for any semester examination. We are preparing for highly coveted objective examination, चाहे पीजी एंट्रेंस हो चाहे यूजीसी नेट हो। इसके लिए वन एंड ओनली बुक आई फॉलो, गुप्ता एंड कपूर। यह इंडियन एग्जाम है इसलिए हमें इंडियन राइटर्स को फॉलो करना चाहिए। हालांकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे बुक हैं, मिलर एंड मिलर हैं और भी बहुत सारे बुक हैं, बट इफ यू विल फोकस ऑल योर एनर्जी इन पर्टिकुलर बुक ओनली, देन हाउ यू विल गेट टाइम टू स्टडी माइक्रो, मैक्रो, मैथ्स, इंडियन इकोनॉमी अदर देन दिस। ओके, तो हियर आई वुड सजेस्ट गुप्ता एंड कपूर करके एक बुक है, पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, और नवीनॉमिक्स जो है हमारा वो भी है, वहां पे भी अवेलेबल है। ठीक है, ऐप पे आप जाएंगे, फ्री मटेरियल में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा दास एंड नागर इज वेरी गुड बुक फॉर द थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, थियरी के लिए काफी अच्छी बुक है दास एंड नागर, काफी पतली बुक है, हार्डली 100 पेजेस की आती है। एंड गुप्ता एंड कपूर की जो ब्यूटी है, थियरी है विथ एग्जांपल्स है। तो जो टॉपिक आपको यहाँ करवाया जाएगा, इवन इफ यू आर आई मीन ओके विद द क्लास लेक्चर सप्लीमेंटेड विद द न्यूमेरिकल्स, जो खूबी होगी एक और चीज, स्टैट्स एंड मैथ्स, इसके आपको पीपीटी प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे बिकॉज दीज आर रनिंग थिंग्स, दीज आर और प्रैक्टिकल थिंग्स। तो हाँ, हालांकि इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नो प्रॉब्लम वहीद, यू कैन ज्वाइन लेटर ऑन, इवन नो इशू, यू विल गेट रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ द सेशन टुडेज वी आर हैविंग। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सर मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स वी आर डूइंग, अभी कुछ दिनों से क्लास बंद है, वी विल रिज्यूम आफ्टर आई थिंक 1 वीक और 2 वीक, आई विल इन्फॉर्म ऑन द ऐप। तो यहाँ पे हमने सेट वगैरह, फंक्शन वगैरह ये सब कर लिया था। आपका ये 3 टॉपिक नीचे का बचा हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन होगा, डिटर्मिनेंट्स और ये। तो 50% से अधिक मैथ्स हो चुका है, मैथ्स क्लासेज आर गोइंग ऑन इन द क्लास एज वेल, और बाकी जो 50% बचे हैं वो आई थिंक नेक्स्ट, एनीबडी हैज एनीथिंग टू से? मुस्कान इज रेजिंग हैंड, सो दैट विल बी डन। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में बहुत लोगों की जो बेसिक्स प्रॉब्लम होती है कि सर कैसे हम स्टैटिस्टिक्स को करेंगे। 4 से 5 लेक्चर अगर स्टैटिस्टिक्स का, जैसा कि मैंने सजेस्ट किया 16 to 17 लेक्चर्स होंगे, 4 लेक्चर्स नियरली 25% आई पे अटेंशन ऑन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। 4 से 5 डिटेल्ड लेक्चर आपको प्रोबेबिलिटी के करवाए जाएंगे। इसके लिए बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आप ताश के पत्ते देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग में से कोई ताश खेलते हैं कि नहीं? जस्ट आस्किंग, यह कोई जुआ नहीं है। मैनी ऑफ यू विल थिंक इट्स गैम्बलिंग एंड ऑल। हाँ, अगर आप पैसे को बाजी में लगाते हो तो यह गैम्बलिंग, अदरवाइज इट इज अ वे ऑफ फन। ताश के आधार पे कितने ना जाने कितने बुक लिखे गए, कितने थियरियाज आई प्रोबेबिलिटी पे। सो
ये हजारों साल पुराना गेम है। दीज डेज इन द era of digitization we are not focusing on the core of things। चेस हुआ, ताश हुआ, ये सब कई पुराना गेम है, तो आपको थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए, ठीक है। ऑनर कार्ड, क्लब क्या होते हैं, फेस कार्ड टोटल कितने हैं, जे क्यू के, तो यह आपके टोटल फेस हैं। अगर हो सके तो आप यह पीक ले सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि दे विल आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड आउट ऑफ ए डेक ऑफ कार्ड। तो आपको पता होगा पहले तब तो स्पेड कितना है, राइट। स्पेड किसको कहते हैं, ये वाले जो भी हर्ट वाले हैं इसको स्पेड कहते हैं। टोटल आपका 13 स्पेड है, 13 एस है, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10 कार्ड्स, प्लस जे क्यू के प्लस 3 13 हो गए ये कार्ड अलग से, तो 10 प्लस 3 13 एक में आ गए, फिर इसमें भी 13, फिर इसमें भी 13, फिर इसमें भी 13, 13 13 30 13 टोटल 52, राइट। फेस कार्ड, अब फेस कार्ड आपके कितने होंगे, तो फेस कार्ड में देख लेना है, यहां तो सब में 10 10 थे और सब में 3 3 फेस थे, 3 फेस 3 फेस 3 फेस 3 फेस, 4 into 3 टोटल हो गए आपके 12 फेस कार्ड। सो इफ दे आस्क ए क्वेश्चन एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक्स, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, तो 12 by 52, एटलीस्ट यू शुड नो सच थिंग्स, बिकॉज आवर क्लास विल बी इन वेरी मच डिटेल्ड। वहां पर आपको जितने भी हैं बायस थ्योरम से लेकर टोटल प्रोबेबिलिटी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंक्लूसिव इवेंट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड विथ प्रॉपर न्यूमेरिकल। तो स्टैट्स का हमारा जो 70% होगा वह हम न्यूमेरिकल करेंगे, मेनली न्यूमेरिकल्स, और 30-35% आपका थ्योरी होगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक नोट्स फ्रॉम द लाइव क्लास। अगर आपके लाइव क्लास मिस हो जाते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसके पीपीटीज नहीं प्रोवाइड होंगे। हाउएवर आई विल ट्राई टू प्रोवाइड माय ओन सेल्फ मेड नोट्स, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। This notes I have made when I was preparing for the UGC NET examination as an kind of gesture of my effort. This notes I will be sharing once our all statistics lectures are done. This notes has nothing to do with the class lecture, ठीक है। class lectures के अलग notes होंगे और यह मेरा self made notes है। I will try to provide it, ठीक है। यहाँ पे everything is written in the detail, theory point of view as well as practical, numerical कम है but theory है। So ये दास एंड नागर के notes हैं that you can see। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हिस्टोग्राम क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन के फीचर हैं। क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन क्या स्मॉल या लार्ज से अफेक्टेड होता है नहीं। तो बुक्स आपको पढ़ना है, बुक्स मैंने जस्ट आपको बताया है, आई थिंक, हाँ बुक्स मैंने आपको बता दिया है, 2 बुक बताया है, ठीक है, गुप्ता एंड कपूर एंड दास एंड नागर। यह बुक अगर आप फिजिकली खरीद लिए तो वेल एंड गुड, ट्राई टू गेट इट PDF। अगर PDF नहीं मिले तो यह बुक आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं और आस्क देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप। हालांकि गुप्ता एंड कपूर बुक अवेलेबल है ऑन आवर नवीनोमिक्स ऐप, फ्री मटेरियल में जाएंगे नवीनोमिक्स ऐप पे आपको यह बुक मिल जाएगी, यह काफी अच्छी बुक है। हाँ, सो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी क्वेरी इन द चैट बॉक्स, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी डू आस्क गाइज। और एक एक टॉपिक को अच्छे से करेंगे। जैसे देखिए, अब आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब जो एक जमाना होता था, यहाँ पर डिफरेंट टेबल दिए हैं, टुडे आई सॉ इन द क्लास, यहाँ पर से आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, एक्स दिए हुए हैं, फिर डी निकालना है, फिर सबको यहाँ समेशन करना है, नहीं, यह फॉर्मूला बेस्ड आपको हेल्प नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अगर आपको होलिस्टिक कंसेप्ट पता है, जैसे चलिए क्वेश्चंस करते हैं, जैसे देखिए मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है, यह बेसिक है, हर को पता है। We will start our lecture. This is the orientation session on statistics. You need not to worry. अब suppose that it is given, एक क्वेश्चन है, it is given that the difference between mean and mode is 63. It is given, ठीक है, यह गया हुआ, it is given. Mode is 63. Now you are asked find the difference between mean and median, where x bar equals to mean. Can anyone solve it? Mean and median. I think yeah, this is the question. एक बार मैं आपको और पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। If anyone can solve quickly. So this is the pure application form and hardly it will take 30 seconds or in just 2 lines you can solve if you know the concepts. तो आपको दिया हुआ है गिवन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड। मीन एंड मोड जो आपका गिवन है, मीन्स आपका डिफरेंस दिया हुआ है जेड एक्स बार जो कि मीन होता है माइनस जेड,
is equals to 63. I request you, we will start our I think statistics live lecture from next week. So almost you have 1 week का समय है. So I request you कि बेसिक्स आप लोग अपने तरफ से एक बार पढ़ लें, क्या क्या बेसिक्स होते हैं, मीन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, मोड क्या होते हैं, डेटा कलेक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, एक जो लेस देन ओजीव और मोर देन ओजीव बनता है, ठीक है, OGIV, ये सब कैसे बनता है, अपने तरफ से एक बार आप पढ़ लें, सो दैट कि आपका इंटरेस्ट जग जाएगा. However, I will be covering in my lecture, no issue. We are preparing for the cutthroat competitive examination. So here your time matters, your amount of lecture matters. अगर मान के चलो वही 15 लेक्चर ना लेके मैं स्टैटिस्टिक्स का 25 लेक्चर्स लूंगा तो यह आपके लिए बर्डन होगा ना. सो आवर गोल इज अफोर्डेबल एंड अफेक्टिव. अफेक्टिव का मतलब हुआ अधिक समय में आप अधिक से अधिक मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप चीजों को डील कर सकते हैं. So I will be waiting for 30 seconds and just asking can somebody just reply क्या होगा इसका आंसर. तो this we know, see what we know, if you know the basic formula, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, like everyone knows that mode, इसको मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ, mode equals to क्या होता है, MODE, mode equals to क्या होता है, if you know 3 median minus 2 mean. आई होप कि यह फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, राइट यह फॉर्मूला नहीं पता है तो देन आई विल बी कवरिंग इन द क्लास लेक्चर, और इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी करेंगे. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आई थिंक ईदर इन CUET और इन UGC नेट एग्जामिनेशन लास्ट ईयर 23. दिस क्वेश्चन. सो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज गिवन 63. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन. सो हाउ वुड यू कैलकुलेट, एनीवन, पीपल हु थिंक आई एम गुड इन स्टैटिस्टिक्स, यू आर गिवन 30 सेकंड टू सॉल्व. So I have also written here formula, मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी लिख दिया है. Mode equals to 3 median minus 2 mean, यह फॉर्मूला होता है. You have to calculate I think x minus m, x bar minus m. X bar means mean minus median. इसका वैल्यू क्या होगा? What will be the value for this? Anyone guys? Please. Anyone? Shruti, fantastic, proud of you. She came very late but she answered सबसे पहले, great. First of all, very good. I think she is correct. चलिए, इतना हिंट देने के बावजूद you should do this. तो बेसिक आपको पता होना चाहिए. आई थिंक जो बेसिक है हमारे पास, आई कुड रीड द चैट, मैं चैट पढ़ रहा हूं आप लोगों के. आई थिंक सिर्फ श्रुति ने आंसर किया है, तो आपको यह पता होना चाहिए. यहाँ पर जो फॉर्मूला है हमारा, विल जस्ट फॉलो द फॉर्मूला हियर. z माइनस, अगर आपका x माइनस जेड दिया हुआ है तो z माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x माइनस x. एनी डाउट? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर z इज योर मोड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका z है मोड, मीडियन हो गया m, मीन हो गया x. दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, 3 मीडियन है, 2 मीन है, 2 मीन. बोथ साइड वी हैव सब्ट्रैक्टेड माइनस x, वेयर x इज नथिंग बट योर मीन, या x बार आप भी बोल सकते हो, x बार ले लो, दैट इज मीन. हमने सपोज दैट अगर इस साइड 100 है और इस साइड 5 into 20 है, दोनों साइड हमने अगर 20 माइनस कर दिया तो स्टिल इट विल बी सेम. तो सिमिलरली वी हैव डन द सेम, दोनों साइड हमने माइनस एक्स कर दिया, दैट इज मीन. अब यहां से देखिए हमारे लिए चीजें काफी आसान हो गई. यहां से क्या हो गया, इसका वैल्यू हमें पता है, z माइनस एक्स का वैल्यू दिया हुआ आई थिंक ये रहा. मीन एंड मोड का डिफरेंस 63 है, यानी x माइनस जेड इक्वल्स टू 63. इट इज गिवन ऑलरेडी, आई हैव रिटन, जस्ट आई रेज. तो यहां पर z माइनस एक्स हो जाएगा तो इसका वैल्यू माइनस 63 होगा, माइनस 63, राइट. तो माइनस 63 इक्वल्स टू, अब यहां पर देखिए यहाँ पे 3m है, यहाँ पे माइनस 3 है, ये माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 आपके कॉमन हो जाएंगे, m माइनस एक्स बार हो जाएगा. एनी डाउट? अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, इसको पलट देंगे, या दोनों साइड माइनस से हम चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 63 इक्वल्स टू, इसको हम इधर लिख देंगे, ये इधर चला जाएगा बिकॉज़ दिस इज इन द प्लस, दिस इज इन द माइनस. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 into x बार माइनस m. तो आपका आंसर आ गया. हमें वैल्यू इसकी चाहिए, तो x बार माइनस m इज इक्वल टू 63 अपॉन 3
that is 21. How simple it was, just 2 to 3 steps. Just 1, 2, 3 तीन स्टेप में आपका आंसर आ गया. Thank you Shruti for replying. Anyone has any doubt? So likewise we will have statistics session. Statistics में हम everything we will cover, everything whatever I discussed here, including this and this, and you will be provided as a kind of token of love my hand written notes. वो काफी डिटेल नोट्स है, मीन, मीडियन, मोड, किसकी स्टेबिलिटी कम है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, इसके फीचर्स हैं, क्वार्टाइल डेविएशन हो गए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ईयर भी जो कुछ फार्मूला आए थे, सफिशिएंट एस्टिमेटर, अनबायस्ड एस्टिमेटर, सैम्पलिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग, सारा कुछ है इसमें, हाइपोथेसिस, रिग्रेशन, है ना, BXY, BYX, people who have already done they need not to worry, but जो बच्चे नए हैं ये देखिए HM और AM में क्या रिलेशन होता है, probability distribution and all, everything you will be provided. On the top of that, on the top of lecture के आप खुद से क्लास नोट्स बनाएंगे. ये देखिए लास्ट ईयर ये क्वेश्चंस आया था इस पे, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, एक्सपेक्टेशन वाला क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर. सर व्हाट अबाउट द, यस श्रुति, इट इज ऑलमोस्ट सेम, यू, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, जस्ट अ मिनट. वंस यू सी द सिलेबस, वी आर कवरिंग मेजरली CUT PG सिलेबस. एक बार देखेंगे, उसमें आपको बस PYQ करने हैं. लास्ट 3 इयर्स के PYQ करेंगे, उसमें जो टॉपिक यहाँ पे कवर्ड नहीं है, यहाँ पे जो टॉपिक कवर्ड नहीं है उसको हम PYQ बेसिस पे कर लेंगे. दैट आई विल बी कवरिंग बिफोर द 1 month of exam. You need not to worry at all. Our priority target would be this and this, and on the top of that, if anything is missing, that I will be covering from the PYQ and the syllabus which is written there. Okay, you need not to Shruti. Yeah, so I think from my side it's done. ये कार्ड के बारे में हमने देख रहा था, कितना फेस कार्ड है, कितना क्वीन है, कितना के है, कितना हार्ट है, कितना स्पेड है. होप एवरीबॉडी नोज. यह आपका डायमंड हो गया, यह हार्ट हो गया, इसको स्पेड बोलते हैं और इसको क्लब बोलते हैं. एंड एवरी डिजिट हैज, ये ए हो गया, इक्का इसको बोलते हैं, इसको हम 1 बोलते हैं. 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 एंड 3 3 3 3 डिफरेंट कार्ड्स. ठीक है, चलिए. सो ग्रेट गाइज, यू हैव सॉल्व्ड दिस न्यूमेरिकल एज वेल. तो इसी तरह के काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे. सबसे ज्यादा क्लास हमारा प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पे होगा, क्योंकि इसी में आगे हमें जो आपके पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या बर्नौली होते हैं, NPQ वाला जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आया था, इसके वेरिएंस निकालने होते हैं, तो रूट NPQ हम लोग करते हैं, ये सब करेंगे. तो मोर ओवर इसमें आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा मिलेंगे, आपको काफी मजा आएगा क्लास में, न्यूमेरिकल्स ज्यादा मिलेंगे, चाहे लाइव क्लासेज हो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर हो या फिर जो भी हो, आपको मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल्स ज्यादा मिलेंगे. कंसेप्ट्स के आपको लिमिटेड नॉलेज इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम जब आप देखोगे, एग्जाम में कंसेप्ट और थियोरेटिकल में 40-60 है, स्टैटिस्टिक्स में 40 एंड 60 क्वेश्चंस आपको 60% सॉल्व करने होते हैं एंड 40% थियरी पूछते हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बी इट यूजीसी नेट, JRF या फिर CUET PG. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. या गो अहेड, if you have any doubt do ask, so I will definitely reply. किसी प्रकार का डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं प्लीज. अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन एंड विल अपडेट यू अबाउट द, हाँ, स्टैटिस्टिक्स का क्लास जो होगा, लाइव क्लास आपका नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली स्टार्ट होगा. राइट नाउ वी आर डूइंग इंडियन इकोनॉमी, राइट. तो एज हमारा क्लास चल रहा है, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो विल मीट, आई थिंक इंडियन इकोनॉमी का क्लास होगा. ऐप पे आपको नोटिफिकेशंस एंड अपडेट मिल जाएंगे दैट वी आर डूइंग. Yeah, anyone has to say something? Muskan is raising hand. Please, Muskan, say something or write. Yes, sir. I want to ask. Please. Like in mathematical methods in economics. Yeah. Like I'm confused in differential equation and differentiation. Like they both are. No. Both are different, and you are not taught each other or. No. I got your point. See, one more. You are CUET, preparing for CUET, right? Yes. You had maths in 12th class? Yes, additional maths. Okay, then no problem. And in 1 semester of graduation. Oh, then you are eligible for DSE as well. देखिए हार्डली 1 क्वेश्चन आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से, हार्डली 1 क्वेश्चन आएंगे. सो इट्स ऑल अप टू यू. बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, या तो फर्स्ट डिग्री या तो सेकंड डिग्री के क्वेश्चंस आएंगे. हाँ, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग है. डिफरेंशिएशन हम करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. तो आई थिंक डिफरेंशिएशन तक हमारा हो चुका था. आपका जो नेक्स्ट 3 टॉपिक बचा हुआ है, 3 या 4, एक बचा हुआ है आपका इंटीग्रेशन, एक बचा हुआ है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, और एक टॉपिक बचा हुआ है आपका
डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड एट द एंड वी विल डू एलपीपी। ठीक है, ये 3 से 4 टॉपिक बचे हुए हैं, सो नो नीड टू वरी इन मैथ्स लेक्चर दैट यू विल बी प्रोवाइडेड। बाकी स्टैटिस्टिक्स में आप, हाँ प्लीज प्लीज मुस्कान। I didn't study econometrics, like never in graduation. No problem, also. no problem. So I don't know about the basics of econometrics. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बेसिक्स आपको बस CLRM, इकोनोमेट्रिक्स CLRM से ही शुरू होती है, क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। यह क्लास में आपको करवाया जाएगा। आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली, इसके 2 से 3 लेक्चर, डिटेल लेक्चर होंगे। जस्ट यू नीड टू दिस, आपका CUET का बर्डन खत्म हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ट्रस्ट मी। हाँ, जो बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड है या जिनको ज्यादा जरूरत है, या हाँ थैंक यू मुस्कान, तो उसके लिए जो भी आपके होंगे, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है, मल्टी कोलिनिटी है, ये सब आपको करने होंगे। बट फ्रॉम द CUET पर्सपेक्टिव, यह 1 से 2 जो टॉपिक है यही आपको करना है। सो आई थिंक, हाँ प्लीज सी, आई वुड सजेस्ट you can go with just one book, Gupta and Kapoor. From my side, what I have done from the graduation point of view, from the entrance point of view, दास एंड नागर, यह जो आप मेरा नोट्स देख रहे हो, यह दास एंड नागर एंड गुप्ता एंड कपूर दोनों का मिक्स है। बट इफ यू हैव एनफ टाइम, आई वुड सजेस्ट कि दास एंड नागर आप पढ़ लें। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो नो प्रॉब्लम, गुप्ता एंड कपूर मोर देन एनफ है। उसमें थियरी भी कवर्ड है और न्यूमेरिकल्स भी कवर्ड है। ओके, सो आई एम नाउ जस्ट, सर CUET syllabus there is no, exactly वही, there is no, you are new, so stay cool and calm. That's why we focus on, we have to decode. Did you see PYQ? Do you know what is syllabus? Syllabus is PYQ plus syllabus. Please don't get misguided. Whatever is asked in the PYQ of CUET, that becomes syllabus. They forgot to add. They did not mention anywhere CLRM. But why did they ask? They did not mention anywhere development, but we teach development as well, because they keep asking. So don't worry. It's all up to you. Minimum whatever is written here in the syllabus, minimum you have to do. In syllabus only 80 to 90% of whole PYQ is covered. If you have to cover everything, so follow PYQ plus syllabus, then only you can answer 100% questions in the exam. However, you may get some wrong answer, but trust me, 100% topic आपके तभी कवर होंगे जब आप PYQ और सिलेबस दोनों को फॉलो करोगे। सिर्फ सिलेबस फॉलो करने से NTA आपको कभी भी चकमा दे सकता है। और मैंने 2 एग्जाम का क्लब इसलिए किया कि UGC नेट का भी एग्जामिनेशन NTA करवाती है, CUET का भी एग्जामिनेशन NTA करवाती है, एंड समटाइम्स क्वेश्चंस आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। खासकर प्रोबेबिलिटी का देखिए, 2023 में दिसंबर में प्रोबेबिलिटी के बहुत क्वेश्चंस आए थे UGC नेट में, और अराउंड 5 क्वेश्चंस CUET 2023 में भी आ गए थे। सो लाइकवाइज योर माइंड शुड वर्क। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं, UGC नेट का जो पेपर 2 है उसको आप सॉल्व करेंगे, JNU का सॉल्व करेंगे पेपर, HU का सॉल्व करेंगे और CUET का सॉल्व करेंगे। या इतना पेपर आप कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट्स अपलोडेड ऑन आवर नवीनोमिक्स ऐप, दैट विल बी मोर देन एनफ। एवरी टाइम यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, चलिए, नाउ आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन, आई थिंक just a minute. Yeah, so I am back. Okay, so I don't think anyone has anything to say. We'll meet you in the next class, guys. ठीक है? Okay, good night, bye bye, take care, wish you the best, and the session will be uploaded, don't worry. Write in the chat box if everything is clear, so that I could say, just a minute, let me read. Yeah, there is no any genuine question related to that. Book हमने देख लिया, syllabus देख लिया, कैसे हमें चीज़ों को बढ़ना है, that also we have covered. Statistics में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. I will be covering statistics, no need to worry. And I hope कि आपने बहुत सारे कुछ डेमो लेक्चर्स भी देखे होंगे. हाँ, एक और चीज़, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस अराउंड 2 to 3 आपके सेशन होंगे, लाइव सेशन. however it will be available recording as well on the app, the course you have joined. वह सेशन आपके रिविजन्स के होंगे, एंड दैट विल बी वेरी प्रोडक्टिव सेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस हम मेनली करेंगे. ठीक है, चलिए देन. या मुस्कान, you have still any doubt, you can ask. No sir. Okay, thank you. So anyone, any doubt, if you have anything to say, you can ask in the chat box, or you can leave your audio message like Muskan, or you can just turn on your video and you can just ask.
अगर आप मुखातिब होना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन। चलो गाइस, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आई एम नाउ पुटिंग ऑफ द सेशन। सर कौन सा ईयर जेएनयू के पीवाईक्यू? लास्ट 4-5 ईयर्स। प्लीज वॉच ओरिएंटेशन सेशन वहीद, प्लीज वॉच ओरिएंटेशन सेशन। आपके कोर्स में एक होगा लाइक डिस्कस दिस guidance and strategy session, 4-5 lectures there in your course. Please watch all those lectures, then start your preparation. Things which have been already covered in the lecture or in the discussion session, I need not to repeat the same thing again and again. सभी को पता है कि JNU, HCU, CUET इन सब के एटलीस्ट 4-5 साल के अच्छे से क्वेश्चंस आपको करने हैं। दैट इज द बेंचमार्क। आप किसी भी कहीं भी जाओ, मॉक टेस्ट करो, कुछ भी करो, इंक्लूडिंग नवीनॉमिक्स, आई एम टेलिंग यू नो वन कैन प्रोवाइड लाइक CUET लेवल। चाहे टफ हो चाहे इजी हो, डोंट गो दैट, सी एंजॉय द फ्लेवर। उनका जो एक होता है ना CUET टाइप का, वो लगना चाहिए। दैट नो वन कैन प्रिपेयर, क्योंकि वो 10-15 स्मार्ट प्रोफेसर होते हैं, वह मिलके बनाते हैं वह क्वेश्चन। आई ऑनेस्टली टेलिंग, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाना और रियल क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बोथ हैज डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व PYQ अच्छे से। उसके बाद आपको जो भी ऐप पे टेस्ट सीरीज या मॉक्स वगैरह अवेलेबल है, देन यू कैन गो फॉर दैट। चलिए, ओके श्रुति, आई थिंक आई एम डन विथ योर ऑल द क्वेरीज। वहीद का हो गया, श्रुति का हो गया, समीर का हो गया, आई थिंक ऑल आर डन। ओके गाइज, चलो, एंड लेक्चर विल बी अपलोडेड आई थिंक विद इन फ्यू आवर्स ऑन द ऐप एज वेल एज इन योर कोर्स। तो हम मिलेंगे स्टेटिस्टिक्स के लाइव क्लास में फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अभी आपका इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, दैट वी विल रैप अप वेरी सून एंड विल स्टार्ट स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, बुक्स मैंने बता दिया है, गुप्ता एंड कपूर, मोर देन एनफ, everything is available. Richa, everything is available on app free material section. Or if you are the Navinomics student, need not to worry, you can ask in the Telegram group as well. We have a private discussion group, you can ask there also. Everything is available on Navinomics app, everything. Give some time, थोड़ा समय दें, चीज़ों को explore करें, you will get everything. चलिए, so just I was waiting for the goodbye from your side in the chat box. Okay. चलिए गाइस, गुड नाइट, थैंक यू रिचा, थैंक यू एवरीवन। सो एनीथिंग टू, एनी वर्ड्स, एनी लाइक थिंग टू से और टू आस्क एनीवन? गुड नाइट समीर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेस। एंड रिगार्डिंग कोर्स थिंग एंड एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू दैट माई टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर, एवरीथिंग, एवरीबडी हैज एवरीथिंग। सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, छोटा भी स्मॉल डाउट हो, चाहे आपका पर्सनल डाउट हो, प्रोफेशनल डाउट हो, एकेडमिक डाउट हो, या थोड़ा टेंशन लगे, डिप्रेशन लगे, क्या प्रॉब्लम है, आप जस्ट यू आस्क, फील फ्री एनी टाइम। आई एम टेलिंग यू, मैनी पीपल हैव डिफरेंट मेंटल स्ट्रेंथ। हर कोई पढ़ने में तेज होता है, तो कुछ मेंटली फिट होते हैं, कुछ मेंटली वीक होते हैं, बट पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं। तो लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर इन योर लाइफ, बट फील फ्री टू रीच आउट एनी टाइम, क्योंकि पढ़ाई इज नॉट मैकेनिकल रिलेशन, देयर शुड बी 1-to-1 रिलेशन। ठीक है, everything has some emotions, ultimately we are a human being, I can understand अभी काफ़ी प्रेशर होगा, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, but one thing I would say, just keep going, forget everything, keep going, forget about result, daily 5-6 घंटे self study करो and forget the result. In between I will keep making some strategy videos from the student point of view, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। one word I would say, people who are little late or people who are थिंकिंग कि नहीं मेरे से तो अब नहीं होगा भाई, मुझे तो स्टैटिस्टिक्स नहीं आ रहा है, मुझे रिग्रेशन नहीं आ रहा है, कोरिलेशन नहीं आ रहा है, प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, कंसीडर द सेम कि औरों को भी नहीं आ रहा है, तो स्टार्ट जर्नी तो करनी पड़ेगी ना। डोंट कंसीडर कि सबको सब कुछ आ रहा है, जितना स्थिति जो हाल आपका अभी है, कंसीडर सेम कि सबका वही हाल है, और उसी पेज से अपने आप को अपने से कंपेयर करें। प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स, जस्ट अपने से कंपेयर करें। आज आपने मीन मीडियन मोड पढ़ लिया, तो कोशिश करें कल थोड़ा सा कोटोसिस वगैरह पढ़ लें, नेक्स्ट डे कोरिलेशन पढ़ लें, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा प्रोबेबिलिटी पढ़ लें। एवरी डे थोड़ा पढ़ते रहें, 2-3 क्वेश्चंस करते रहें, एटलीस्ट आधा घंटा ही पढ़े, आधा घंटा मैथ्स पढ़ लें, आधा 1 घंटा स्टैट्स पढ़ लें, बाकी 3-4 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ लें। थिंग्स आर ईजियर, ट्रस्ट मी, जस्ट यू नीड you need to have faith in yourself. थैंक यू उम्मे, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज फील फ्री टू रीच आउट मी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे, सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक्स, वी शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर लाइव्स। आई एम नॉट हियर टू ओनली गिविंग मेंटरशिप अबाउट ओनली इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप कहीं से पढ़ सकते हो, आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, बट लाइफ लर्निंग शुड बी आवर अल्टीमेट गोल।
गोल। आई एम टेलिंग यू, डिग्री हो गई या एग्जाम्स हो गई, वो धरी की धरी रह जाएगी। अल्टीमेटली हाउ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, हाउ मेंटली फिट यू आर, हाउ हैप्पी यू आर, दीज आर द रियल असेट। एंड दिस थिंग्स ये हम अपने साथ लेके जाते हैं। लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली यू विल लीव द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग विल बी हियर। नो, देयर आर फ्यू थिंग्स वी टेक विथ अस, द वर्क यू हैव डन, द ह्यूमैनिटी यू हैव, राइट, हाउ हैप्पी यू वर, दिस थिंग्स विल गो विथ यू। रुपए, पैसे, धन, दौलत, डिग्री, मार्क्स, ये सब यहीं रह जाएंगे। सो उन चीजों को थोड़ा थोड़ा इनकलकेट करें एंड ट्राई टू हेल्प अदर्स सो दैट अदर पीपल विल फील मोटिवेटेड। आप अगर एक दो लोगों को भी मदद कर सकते हैं तो योर लाइफ विल बी रियली वर्थ, ठीक है। एंड ऑलवेज हैव कोलैब, नॉट कॉम्पीट। कोलैब करने से वी ग्रो, यू नो ना, यूनाइटेड वी यू नो स्ट्रेंग, जो कोट है, आई एम जस्ट अनेबल टू रिकॉर्ड, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो एक साथ आपको बढ़ना है, ठीक है। कोलैब करें, कंपीट नहीं करें। एंड एवरीबडी हैज देयर ओन डेस्टिनी, डोंट वरी, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा ही। और आज के युग में, इंटरनेट के युग में, ऐसा मत समझिए कि आप किसी की कुछ मदद कर देंगे या किसी को कुछ बता देंगे तो वह आपसे आगे निकल जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप और आगे निकलोगे। ऑन द मार्क्स, ऑन द CUT स्कोर ऑन समथिंग, he or she may have higher things, but on the grounds of humanity, on the grounds of kindness, you will have better score. So जीत हार का कोई कंसेप्ट नहीं है। चलिए, so thank you so much, good night, hope to meet you in the live session, bye bye, take care and always feel blessed कि आपको सीखने का मौका मिल रहा है। डोंट कम्पीट विथ अदर्स, हाँ, बट डू कम्पीट विथ योर सेल्फ। अपने आप से जरूर कम्पीट करें कि आज हमने आधा घंटा पढ़ा तो मेक श्योर कि टुमारो भी एटलीस्ट हाफ एन आवर एटलीस्ट पढ़ें या 1 आवर। दैट कंपटीशन शुड बी ऑलवेज देयर। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। स्लोली जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे, बट डेली करेंगे। डिसिप्लिन मैटर्स, ट्रस्ट मी, ठीक है। बाकी जो भी क्लास लेक्चर्स होंगे, नोट्स होंगे, यह सब आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्वालिटी कंटेंट होंगे, क्लासेस होंगे, सिलेबस होंगे, इसमें कोई कमी नहीं रहेगी फ्रॉम माई ऑनवर्ड्स, ट्रस्ट मी। आपने जो अभी तक पढ़ा होगा, यू सी द PYQ, चाहे मैक्रो हो, चाहे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, जो भी आपको करवाया जा रहा है, यू सी the PYQ level, your understanding level and our class lecture, you will be quite satisfied. हाँ, उसमें थोड़ी वैल्यू एडिशन की जरूरत है, that we will be doing when we will be doing second round of revision. उसमें थोड़ा एडवांस मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल्स हमें ऐड करना होगा जब हम रिवीजन करेंगे। एंड राइट नाउ वी विल बी स्टार्टिंग दैट स्टैटिस्टिक्स कोर्स। चलिए, गुड नाइट गाइज, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग दिस मच फिलोसॉफिकल, बट एज ए ह्यूमन बीइंग आई कैन अंडरस्टैंड दीज डेज यू आर मोस्टली Gen Z. We are blessed to have a mentor like you. Thank you, Niharika. Thank you so much. I am also very much inspired from your words. Every time, चाहे टीचर्स डे हो, गुरु पूर्णिमा हो, निहारिका यूज्ड टू मैसेज मी सबसे पहले। सो आई फील कि यार चलो कुछ तो लोग हैं जिनके लाइफ में मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। एंड वट एवर आई एम saying you, it all comes from the experience. एक्सपीरियंस को हल्के में ना लें। I may not be the good mentor, I may not be the knowledgeable man, but trust me and I feel proud that I have some sort of quality experience that I want to share. Today, tomorrow you will realize yes, what sir was saying or sir is saying, somewhat it is, yeah, the words he was saying is correct. Okay, thank you guys, thank you for kind words, it really inspires me. आखिर मैं इतना मेहनत किनके लिए करूँगा? अपने लिए तो करूँगा नहीं, करूँगा आपके लिए ही। तो the words you say or the feedback you give, I try to add value to the teaching style or to my life or to provide the service to the society or to the students community in all the possible ways. चलिए, we thought of session को हम 20 to 30 minutes रखेंगे, but as usual it's nearly again 40+ minutes. चलिए, लाइव क्लास में मैं मिलूंगा और जोर शोर से पढ़ना है। बुक्स मैंने जो बता दिया है, नोट्स आपको मिलेगा, क्लास लेक्चर्स करने हैं। प्रायोरिटी शुड बी क्लास लेक्चर्स। क्लास लेक्चर्स समझ में नहीं आए तुरंत एक बार बुक्स को फॉलो करेंगे, वहां भी समझ में नहीं आए, जो टॉपिक समझ में नहीं आए उसका स्क्रीनशॉट लेंगे या कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, उसको तुरंत आप टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करेंगे, वहां पे आपके डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे। आई विल बी रिप्लाइंग और लाइक योर फेलो विल बी रिप्लाइंग, समहाउ यू विल गेट द क्वेरी रिजॉल्व। चलिए, गुड लक, गुड नाइट।